second wicket as well. And the scoreboard shows a 24. 24. 6 runs. They already scored 6 runs per over. The projected score is about 42. Could be a dependable target in this ground. That is what we have seen from the beginning. The bowlers are dominated in this tournament. Very less numbers of sixes and boundaries scored in this tournament so far. Let's see who is going to bowl. 5th over from Mariguddi Mudabidre. The first wicket partnership worked so well for NM Mangalore, but once they lost the wicket of Sajid, immediately they lost the wicket of Taufik as well. In the couple of delivery, they lost both the opening batsman. That is a big situation of this game because the Sukumar pulled the things back for Mariguddi Mudabidre. Now last 18 deliveries still remaining, 24 on the board. Let's see who is going to bowl 5th over from Mariguddi Mudabidre. Again, it's Altaf Basabanagudi who is going to bowl second over of his individual quota. In the very first over which is bowled, in fact, second over of the first innings he conceded only 4 runs. That is one of the economical over bowled by Mr. Altaf. Now again, first delivery of the 5th over. There's a batsman trying for a reverse sweep, not able to connect the ball again. Very good line and length bowled by Altaf. He is not allowing batsmen to score any easy runs. That is called the experience by Mr. Altaf Basabanagudi. Now again a second ball. Right arm over the wicket to right-hand batsman Mr. Atif. That's a beautiful delivery. Again a loud appeal for LBW. The umpire was not interested. One more run added to the total. With that single now scoreboard moves up to 25 after completion of 4.2 over. Again Altaf this time on the striking end. Mr. Riaz already scored 1 run in the first delivery which he has faced. Now again Altaf third time in this over. Altaf to right hand batsman Mr. Riaz. Third ball of this over. Again loud appeal from Mr. wicketkeeper Mr. Ravi. The umpire was not interested. One more run added in the form of extra. One more run added to the total and the run from the bat, and one more run added to the total. 26 on the board after completion of 4.3 over. Again Altaf to right-hand batsman Atif. 4th ball of this over. That's a beautiful delivery straight to the field and Suresh, and pummeled by the fielder Mr. Suresh. Otherwise this could be an easy run out chance was there. He missed the opportunity. He is one of the best fielder of Mariguddi Mudabidre. Still he is not able to collect the ball properly. By the time batsman crossed for easy singles. One more run added to the total. Now again Altaf. This time very good sweep shot. One more run added to the total. Running first and very hard. Settle with the single. One more run back to back single added to the total. Scoreboard moves up to 28. Last one delivery still remaining from Mr. Altaf in the 5th over. The last and final delivery, Altaf to Atif. Altaf right arm over the wicket to Mr. Atif. That's a very good delivery straight to the bowlers, and there's a chance for the run out. Direct hit was required, but throw was not that very accurate. Oh, look at the throw from the deep. Who is the fielder? Mansoor Karkala. That's a very good throw from the deep, direct throw. The umpire given to the refer to the third umpire, still waiting for the third umpire decision. Irfan, he has to do a lot of work. Looks like it was a tough call for the umpire as well. This is a 50-50. Let's wait and watch whether it is out or not out. Oh, the batsman already walking out of the ground. That means it is out. That is called. Yes, it's out. Third umpire given us out. Before coming the decision, the batsman was walking out of the crease because he knows that he is well shot inside the crease. One more wicket, in fact. Third wicket lost by NM Mangalore for scoring just 28 runs. Look at the over which is bowled by Mr. Altaf. Again in his second over of his individual
Kota, he just conceded 4 runs. He already bowled 2 overs of his individual quota, and he conceded only 8 runs. This is one of the best bowling performance by Mr. Altaf Basavanagudi. After completion of 5 over, the scoreboard shows 29. 29 for the loss of 3 wickets. 5 over ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಎನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 29. This time Sukumar again, good delivery, very good delivery, outside of the leg stump. There is absolutely no chance for getting any run. One more dot ball, each and every dot ball creating extra pressure on the batting side. 29 on the board, anything less than 40, it's not a safe target in this ground. There is a lot of discussion again going in between Rajesh, Suresh. The scoreboard shows 29. 29 on the board. $28 on the board. 28 on the board, because in the last delivery of the 5th over there is not a single run. It was a run out. That is why without scoring in the last delivery, 28 on the board. That's a loud appeal again. Umpire was not interested. Good running between the wicket again. One more run added to the total. Umpire signaled as a leg bias. One more run added to the total. Now scoreboard shows 29. So far 5.2 over has been bowled. I think bowlers have done a great job. Apart from the first over which is bowled by Suresh. First over he considered 10 runs. After that, Marigudi bowlers done a great job. Especially Altaf and Dayanand as well as Sukumar also. Again a good reverse sweep, running first and very hard. They are getting only a single. Runs are coming only in the form of single. The batsmen are struggling to score a big shot. That is why we have seen from the beginning of this tournament, batsmen are struggling to score a big shot, whereas bowlers are dominated in this tournament. Scoreboard shows 30 on the board. Again a 4th ball. Right arm over the wicket. 4th ball of the 6th over. It's a beautiful delivery. Slow and very good placement. We know this is a fielder, one of the best fielder of Marigudi. Very good fielding. The throw was very accurate. Just single added to the total. With that single, scoreboard moves up to 31. Last 2 deliveries still remaining in this over. Sukumar is going to bowl the 5th ball of this 6th over. Right arm over the wicket to right-hander batsman. The new batsman, Ayaz, is on strike. 5th delivery of this over. Oh, that's a sensible. Just open the face of the bat. One more run added to the total. Runs are coming again in the form of single. Scoreboard moves up to 32. The last 1 delivery still remaining in the 6th over by Mr. Sukumar. On the striking end, this time it's Atif. I think he's a one-down batsman from Yenna Mangalore still there. His team... one more dot ball. Very good line and length. Again, which is a very good line and length bowled by Mr. Sukumar without conceding any run in the last delivery. The scoreboard shows 32. In the first over, Yenna Mangalore scored 10 runs, whereas in the last 5 over, they can able to score only 22 runs. That is the outstanding bowling performance shown by Marigudi Moodabidre. Last 6 delivery remaining. Let's see how many runs will scored by Yenna Mangalore. Anything less than 40, definitely not at all safe target in this ground. There are a lot of quality batters from are playing for Marigudi Moodabidre. At the same time, there is a lot of quality bowlers are there in Yenna Mangalore as well. I think this is one of the toughest match of this tournament in between Marigudi Moodabidre versus Yenna Mangalore. Last 6 delivery remaining. Let's see who is going to bowl in that final over. Lot of discussion. After a lot of discussion, the captain of Marigudi, let's see who is going to bowl in the last over. I think it's Vinod is going to bowl last over. He is also one of the experienced all-rounder from Marigudi Moodabidre. After a lot of discussion of the players and the captain, finally they are decided to give the ball to Mr. Vinod to bowl the last over of this first innings. Scoreboard shows 32. On the striking end, Ayaz, and non striking end, Atif. At least a couple of big shots required for Yenna Mangalore to pull the things back.
They got the very good start. For first wicket partnership, it was 22 runs. But after that, they lost their wicket in a regular intervals, as well as the batsmen played a lot of dot balls. That is why they scored only 32 runs. Now again, first delivery. Vinod, right arm over the wicket to right-hand batsman. That's a good delivery. That's a sensible delivery. That is down for the run out. And Vinod is not gathered the ball very properly. One more run added to the total. With that single, scoreboard moves up to 33. 33 on the board now. Last 5 deliveries still remaining from Mr. Vinod. Vinod called as a Pollard as well. There's a surname for Mr. Vinod. They gain a second time. Right arm over the wicket to right-hand batsman. This time ball is in the air. Well connection by Mr. Atif. Rajesh is a fielder. Excellent fielding effort by Mr. Rajesh. He is one of the best fielder from Mariguddi. Still the batsman can able to cross for the 3-run. Good running between the wicket as well. Overall, good cricket on the field. That is an outstanding effort from Mr. Rajesh. One of the best fielder from Mariguddi, Muda Bedra. He saved one important run for his team and the scoreboard moves up to 36. Last 4 delivery still remaining. The batsman Atif connected the ball so beautifully. But Rajesh finally can able to collect the ball just inside the boundary line mark. That's a great effort. Now again third time. Right arm over the wicket. The batsman charging down the track. Connected properly straight on the ground. Towards the straight on the ground. Running first and very hard. Look at the throw from the deep. Excellent throw. Next after the stump. Remaining job done by the wicket keeper. Wicket number 4th goes down for Mangalore. This time it is Mr. Ayaz walking back to the pavilion. First run was completed. Both the batsmen are interested to take a second run, but the throw was very accurate from the deep and remaining job done by the wicket keeper. The single added to the total. With that single, scoreboard moves up to 37. 37 on the board for the loss of 4 wicket. Last 3 delivery still remaining in this first innings. The new batsman Amir walking to the center. I think he has to move towards the striker end. On the non-striking end, it is Atif. Amir joining the senior partner Atif. Last 3 delivery remaining. So far, I think this could be as long as it looks like it's expensive over by Mr. Vinod. So far, he considered 5 runs from first 3 deliveries. Last 3 delivery still remaining. 37 on the board. Vinod to the new batsman is on strike, Mr. Amir. At least one big shot required for Mangalore. If they can able to score more than 40, then that could be a very good total on the board for Mangalore. Once you cross the 40 line mark, then it will be a psychological feeling. So last 3 delivery still remaining in this over. Again, there is a lot of fielding changes done by the wicketkeeper, Mr. Ravi Paddayuru, who is playing for Mariguddi Mudabidre. Now again Vinod, 4th ball of this over. That's a beautiful delivery. Oh, straight to the fielder's hand and remaining job done by the bowler himself. One more wicket lost by Mangalore. Back-to-back wicket lost by Mangalore in the form of run out. In fact, I think this is the 3rd wicket they're lost in the form of run out. And the scoreboard shows only 37. Last 2 deliveries still remaining. In the place of Amir, the new batsman walking to the center. Zaid to join the senior partner Atif. The one down batsman still on strike. He already scored 8 runs from 11 deliveries. Last 2 deliveries still remaining. He the batsman who can connect any ball out of the ground. Just one big shot required for them to cross the 40-run mark. 37 on the board for the loss of 5 wickets. Last 2 deliveries still remaining. Vinod, right arm over the wicket to right-hand batsman Mr. Atif. 5th delivery of this last over. Oh, that's the ball is in the air for a while. There is a no fielder. There is a huge gap between deep square leg fielder and a deep mid wicket fielder. By the time batsman crossed it for a couple of runs. Good placement by Mr. Atif. 2 important runs added to the total. Scoreboard moves up to 39. Last 1 delivery still remaining in this over, in this first innings as well. Last and final delivery. Vinod, right arm over the wicket to right-hand batsman. So far, he considered 7 runs in the first 5 delivery. Vinod is going to bowl 1 final delivery in this over.
The batsman charging down the track, not quite able to connect the ball. Chance for the run out. Yes, it is very good throw from wicket keeper. Next right after the stumps and remaining job done by the bowler himself. One more wicket goes down in the form of a run out. The scoreboard shows only 39. 40 is the target from 42 deliveries for Marigudi Mudabidre. 42 ಎಸೆತ 40 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿದೆ ಮಾರಿಗುಡಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ, ಮಾರಿಗುಡಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಬೇದ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಬರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಹಿಗಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಬೇದ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಪೆಂಡೋಲ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನ್ನವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ 11 ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೊದಲು ಬೆಳಕಿನ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂತಹ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೂಲ್ಕಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಧಿಕಾರ ಶ್ರೀ ಒಮನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರವರ ಅಭಯದಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ರಾಜಕೀಯ ಧುರೀಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಧಿಕಾರ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಕೂಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಶಾಸಕರಾದ ಅಮರನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರವರು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಿಯಾದ್ ಗೋರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹರೀಶ್ ಅವರು ಇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಆದಂತ ಸುದರ್ಶನ್ ಎಂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಭಾಜಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಯುವ ರಾಜಕೀಯ ಧುರೀಣ ಅಬಲಾಲ್ ಪುತ್ತಿಗೆ ಅಂತೆಯೇ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯಾನುಗಣ್ಯರು ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ರೂವಾರಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ವರ್ಯರಿಗೆ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅನಂತ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬೆದ್ರಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ धन्यवाद सुकुमार जी. इसी के साथ एनएम मैंगलोर और ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಾರ ನವೀನ್ ಪುತ್ತಿಗೆ. ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. मारीगुडी वर्सेस एनएम मैंगलोर के बीच एक बेहतरीन मैच चलता हुआ. मारीगुडी के ओर से सलामी बल्लेबाज रवि पड्डयूर और निखिल का आगमन होता हुआ. दो अनुभवी सलामी जोड़ी आगमन होता हुआ. 42 डिलीवरीज 40 रन रिक्वायर्ड टू विन दिस मैच. रोचक मैच आज होने को है. लो स्कोरिंग मैच. हमने पिछला मैच भी देखा था लो स्कोरिंग मैच को डिफेंड कर पाए थे यहाँ विपक्षी टीम. तो इसी के साथ गेंदबाजी का रूप संभालते हुए द मैंगलोर एक्सप्रेस मुजीब का आगमन होता हुआ.
मुजीब अनुभवी गेंदबाज एनएम मैंगलोर की ओर से। यस, मार्केट एंड से तैयार मुजीब गेंदबाजी का रूप संभालते हुए रवि के लिए तैयार। पहली ओवर पावर प्ले ओवर, काफी अच्छी गेंद, उसी तरह की बेहतरीन कीपिंग की प्रदर्शन वहां पर इरशाद द्वारा। तो इसी के साथ पहली गेंद डॉटेड जली विद द बॉल वेंट लाइक अ ट्रेजर बुलेट इनटू द हैंड्स ऑफ कीपर ओवर देयर। गिल्लियां उड़ाई थी जरूर मगर कोई सुरक्षित क्रीज पर थे रवि। तो इसी के साथ पहली गेंद डॉटेड डिलीवरी, दूसरी गेंद लेकर तैयार है। दूसरी गेंद लेकर तैयार। तो अगला मैच होगा बेद्रा फ्रेंड्स और जिगर माइंड के बीच। एक तरफ कासरगोड के दिग्गज खिलाड़ी मौजूद हो तो दूसरी तरफ नजर 9th ब्लॉक के दिग्गज खिलाड़ी। तो आमना सामना होगा अगला मैच बेद्रा फ्रेंड्स वर्सेस जिगर माइंड के बीच। तो इसी के साथ मुजीब अपनी दूसरी गेंद लेकर तैयार मार्केट एंड से। रवि के लिए, रवि पुत्तूर के अनुभवी खिलाड़ियों से मानी जाती रवि किसी भी कहीं भी क्षण में मैच बदल करने की यहाँ पर क्षमता रखते हैं। रवि इस बार तैयार और एक अच्छी स्ट्रोक यहाँ पर करारा स्ट्रोक आती हुई लॉन्ग ऑफ रीजन पर 1 रन से संतोष होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ खाता खुलता वहां पर रवि और मारिगुड़ी फ्रेंड्स का। दे आर द मार्क ऑन विद दैट 1 रन बिना कोई नुकसान के। निखिल अब स्ट्राइक रेंज पर लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के बीच पावर प्ले ओवर चलती पर मुजीब अपनी तीसरी गेंद लेकर तैयार। निखिल सामना करेंगे पहली बार मुजीब का इस बार। फील्डिंग की सजावट करते हुए इस बार रोचक मैच चलता हुआ एनएम मैंगलोर और मारिगुडी फ्रेंड्स के बीच। दोनों दिग्गज खिलाड़ियों को सजाकर टीम बनी हुई दोनों टीम और एक बेहतरीन गेंद मगर लेग स्टंप से काफी बाहर थी, वाइड का इशारा एम्पायर द्वारा। इसी के साथ 1 मोर एक्स्ट्रा एडिंग टोटल विद दैट 1 रन स्कोर कुल मिलाकर 2 ऑन द बोर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 डिलीवरीज। 3 गेंदों के बाद 1 रन, 2 रन बन चुके हैं स्कोर बोर्ड पर। अब बचे हुए 3 गेंदों पर कितना रन जोड़ पाएंगे देखना पड़ेगा। पावर प्ले ओवर चालती पर चौथी गेंद लेकर तैयार मुजीब फ्रॉम द मार्केट एंड और एक बेहतरीन स्ट्रोक सीधे बल्ले से खेलते वहां पर फॉलो थ्रू पे मारा तो जरूर थोड़े से पंबल हुए थे मुजीब वहां पर। इसी के साथ सुरक्षित क्रीज पर तैनात निखिल एक प्रहार करना चाहते थे मगर गेंद सीधा बॉलर थ्रू पर जाती हुई। तो इसी के साथ डॉटेड डिलीवरी। आखिरी 2 गेंद शेष मुजीब की, 5वीं गेंद लेकर तैयार मुजीब पावर प्ले की ओवर पर। आखिरी 3 गेंद शेष, माफ कीजिएगा, चौथी गेंद लेकर तैयार मुजीब गेंदबाजी का रूप संभालते हुए। निखिल सामना करेंगे मुजीब का और एक बेहतरीन गेंद हल्के से पुश किया था जरूर मगर बेहतरीन फील्डिंग भी वहां पर किया जाएगा। तो 1 रन आसानी के साथ चुरा लिया। इस 1 रन के साथ 1 मोर एडिंग इन टोटल विद दैट 1 रन। छोटी छोटी कदम रखते हुए स्कोर बोर्ड पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मारिगुडी फ्रेंड्स 3 रन बन चुके हैं। तो इसी के साथ आखिरी 2 गेंद शेष, लास्ट 2 मच टू गो द 5th टाइम। मुजीब तैयार गेंदबाजी का रूप संभालते हुए। रवि पड्डायूर ओपनिंग साझेदारी रवि और निखिल आए थे पावर प्ले के ओवर में साझेदारी निभाने की पूरी कोशिश करते हुए रन बटोरते हुए। अब तक सिर्फ 3 रन बन चुके हैं 4 गेंदों के बाद। आखिरी 2 गेंद शेष अभी भी बाकी है। 5वीं गेंद का सामना करना पड़ेगा रवि के लिए। रवि एक आक्रमण बल्लेबाज है, इनको निकालना जरूरी होगा एनएम मैंगलोर को अगर मैच को जीतना हो तो। कभी भी कहीं भी पलटने वाली पारी खेल सकती है रवि इस बार। और एक बेहतरीन स्ट्रोक रवि के बल्ले से आते हुए हमारे पर कैच को नो बॉल का इशारा एम्पायर द्वारा। अगर कैच को लेते थे भी यहाँ पर नॉट आउट हो सकता था और कैच भी छूटा था यहाँ पर तो सेफर साइड कह सकते हैं मारिगुडी के लिए। 2 रन एक्स्ट्रास के रूप पर चुरा लिया। इस 2 रन के साथ स्कोर धीरे धीरे बढ़ते हुए स्कोर बोर्ड पर कुल मिलाकर 5 runs on the board.
I request Mr. Jalil of Jigar Mine Mudvidri to come on the main stage for the photograph session. Mr. Jalil Shriram Ujre. तो इसी के साथ आखिरी 2 गेंद शेष, 5वीं गेंद लेकर तैयार है मुजीब। नो बॉल का इशारा था एम्पायर द्वारा। हवे में गेंद तो थी जरूर, रवि तो खतरे में थे मगर कैच भी छूटा, गेंद भी नो बॉल थी, तो इसी के कारण सुरक्षित रवि अपने क्रीज पर अभी भी स्ट्राइक रेंज पर निखिल सामना करेंगे मुजीब की 5वीं गेंद लेकर मार्केट एंड से तैयार। और एक बेहतरीन शॉट निखिल के बल्ले से आते हुए, एक टिप्पा खाने के बाद गेंद सीधा सीमा रे के पार कर गई 4 रन के लिए। द बॉल वेंट लाइक अ ट्रेजर बुलेट इनटू द फैंस ओवर देयर। एक टिप्पा खाने के बाद गेंद सीधा सीमा रे के पार कर गई 4 रन के लिए। इस चौके ने मारिगुडी फ्रेंड्स के डगआउट पर एक उत्साह दिलाती हुई, एक खुशी दिलाती हुई यहाँ पर, क्योंकि ये चौके की जरूरत थी यहाँ पर मारिगुडी फ्रेंड्स के लिए। मुजीब जैसे गेंदबाज को इस चौके को मारना एक अनुभवी वाली बल्लेबाजी होती है, उसी तरह की बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर निखिल। और इसी के साथ आखिरी 1 गेंद शेष, लास्ट 1 more to go। स्कोर कुल मिलाकर ऑन दी बोर्ड 9 ऑन दी बोर्ड। और एक बेहतरीन स्ट्रोक खेला था जरूर मगर बॉल थ्रू पर मारते हुए, तो इसी के साथ कोई रन नहीं। पहली ओवर की समाप्ति के बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पावर प्ले ओवर, स्कोर कुल मिलाकर ऑन दी बोर्ड 9 ऑन दी बोर्ड फॉर लॉस ऑफ नो विकेट्स। मैच अभी भी बराबर के टक्कर चलती हुई, क्योंकि इस कंडीशन पर कम स्कोर मैच हमने डिफेंड होती हुई देखी है। और यहाँ पर अगर मारिगुडी की ओर देखेंगे तो क्षमता है पूरे बल्लेबाजों को ऐसी स्कोर बनाने की, तो मैच रोचक स्थिति पर अब चलती हुई यहाँ पर 50% बराबर की मैच चलती हुई दोनों टीमों के बीच, एनएम मैंगलोर और मारिगुडी फ्रेंड्स के बीच। मुडबिद्री 11 क्रिकेटर्स, एमबी 11 क्रिकेटर्स आयोजित करते हुए बेहतरीन टूर्नामेंट, फेडलाइट टूर्नामेंट मुडबिद्री वर्सेस मैंगलोर के बीच दिग्गज खिलाड़ियों को यहां पर जमा कर दोनों पूल में बेहतरीन मैच चलता हुआ फ्लड लाइट टूर्नामेंट। एक तरफ मुडबिद्री यूनियन के टीम पूल में हो तो दूसरी तरफ मैंगलोर पूल बी पूल में हो, तो सामना करेंगे द मेगा फाइनल पर। दोनों टीम के एक दोनों टीम सामना करेंगे मेगा फाइनल पर। तो इसी के साथ रवि स्ट्राइक रेंज पर मौजूद, गेंदबाजी का रूप संभालने के लिए रियाज का आगमन होता हुआ। रियाज वन ऑफ द बेस्ट चैंपियन फ्रॉम एनएम मैंगलोर, ऑलराउंडर का भूमिका निभाते हैं रियाज। निखिल के उस चौके ने पूरी तरह मारिगुडी को पावर प्ले ओवर पर वापसी दिलाई, बाउंस बैक करते हुए इस बार। अब रियाज तैयार, गेंदबाजी का रूप संभालते हुए दूसरी ओवर लेकर तैयार। और एक बेहतरीन गेंद कीपर के दस्तानों पर आई थी जरूर, और डॉटेड डिलीवरी। इसी के साथ कम बैक करने की पूरी कोशिश करते हुए यहाँ पर रियाज, क्योंकि पहली ओवर पर 6 गेंदों के बाद 9 रन बना चुके थे मारिगुडी फ्रेंड्स। अब इस गेंद को डॉटेड डिलीवरी के बाद 7 गेंद पर 9 रन बना चुके हैं मारिगुडी फ्रेंड्स। दूसरी गेंद लेकर तैयार रियाज, गेंदबाजी का रूप संभालते हुए अपनी कदमों को आगे बढ़ाते हुए रियाज रवि के लिए। गेंद काफी दूर चली गई थी, इरशाद से काफी दूर चली गई थी गेंद, मगर थर्ड मैन रीजन पर 1+1 2 रन एडिंग इनटू टोटल विद दैट एक्स्ट्रा। वाइट का इशारा एम्पायर द्वारा। इसी के साथ 2 रन एडिंग टोटल विद दैट 2 रन। स्कोर कुल मिलाकर ऑन दी बोर्ड 11 ऑन दी बोर्ड। हनंदो 11 ऑन दी बोर्ड बिना कोई नुकसान के। मारिगुडी फ्रेंड्स आर ऑन दी मार्क विद दैट 11 रन्स। लगातार रन्स बटोरते हुए मारिगुडी फ्रेंड्स, मगर एनएम मैंगलोर के पास क्षमता है यहाँ पर बाउंस बैक करने की, वापसी करने की क्षमता रखते हैं यहाँ पर गेंदबाजी पर। अगर इसी तरह की वाइड्स एक्स्ट्रास के रूप पर अगर रन्स देंगे तो मैच आसानी के साथ मारिगुडी जीत सकता है। विकेट की दरकरार जरूर रहेगी एनएम मैंगलोर को।
डॉटेड डिलीवरी की दरकार जरूर रहेगी। तो इसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी एनएम मैंगलोर को अगर इस दो दिग्गज बल्लेबाजों को रोकना हो तो, क्योंकि डगआउट पर आप अगर नजर डालेंगे तो मारिगुडी फ्रेंड्स के डगआउट पर अभी भी काफी बल्लेबाज मौजूद है जो इस टारगेट को पूरा करने की क्षमता रखते हैं। तो इसी के साथ एनएम मैंगलोर को क्वालिटी वाली गेंदबाजी करनी होगी। दूसरी गेंद लेकर तैयार रियाज अपने जोर को संभालते हुए मार्केट एंड से रियाज अपनी दूसरी गेंद लेकर तैयार है गार्ड को बदलते हुए और एक बेहतरीन फील्डर तैनात रन आउट की खतरा। जी हाँ, क्या अगर गेंद सही तरीके से इरशाद कलेक्ट कर पाते तो मेरे हिसाब से रन आउट के रूप पर रवि का बड़ा विकेट गिर सकता था, मगर सुरक्षित गलती कर बैठे यहाँ पर एनएम मैंगलोर के क्षेत्र रक्षण की बेहतरीन क्षेत्र रक्षण थी। थ्रो तो सही आई थी मगर विकेट कीपर ने थोड़ी सी गलती कर गई वहां पर। अगर इरशाद उस गेंद को सही तरीके से लेते तो विकेट खो सकता था रवि पट्टायर का, मगर सुरक्षित मौजूद। इस तरह के साथ एक रन, वन मोर एडिंग इन टोटल विद स्कोर कुल मिलाकर ऑन दी बोर्ड 12 रन बन चुके हैं, 12 रन बन चुके हैं। अब तीसरी गेंद लेकर तैयार रियाज गेंदबाजी कर संभालते हुए और एक बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 22 का इशारा बता रहे हैं अंपायर, बल्ले को नहीं लगता हुआ गेंद 22 के रूप पर और एक रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड पर। वन मोर एडिंग टोटल 13 रन्स ऑन दी बोर्ड। आज बेहतरीन मैचेस होने को है। अंडरआर्म क्रिकेट की दिग्गज एक से एक बड़े बड़े दिग्गज यहां पर आमना सामना करेंगे इस स्वराज मैदान पर। सभी दर्शक गचागच मैदान पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। वंडरफुल टूर्नामेंट ओवर और इसके इसी के साथ एक बेहतरीन बल्लेबाजी भी करते हुए निखिल इस बल्लेबाजी के साथ कॉन्फिडेंस बढ़ाते हुए 2 रन चुरा लिया। इस 2 रन के साथ स्कोर कुल मिलाकर ऑन दी बोर्ड 15 रन बन चुके हैं। पूरी तरह कॉन्फिडेंस बढ़ाते हुए मारिगुडी फ्रेंड्स की पूरी तरह रन्स बनाते हुए यहाँ पर रणनीति को रोकने की मुश्किल यहां पर सामना करते हुए एनएम मैंगलोर रोक नहीं जमावट करते हुए मारिगुडी फ्रेंड्स आसानी के साथ अपने रन तालिका पर आगे बढ़ते हुए। तो स्कोर कुल मिलाकर ऑन दी बोर्ड 15 रन बन चुके हैं। आखिरी 2 गेंद शेष, 5वीं गेंद लेकर तैयार रियाज डू निखिल ओवैयर और एक बेहतरीन गेंद सीधे बल्ले से खेलते हुए कोई फील्डर नहीं, सीधा सीमा रे के पार कर गई 4 रन के लिए और एक चौका। द वंडरफुल बाउंड्री कमिंग फ्रॉम द बैट ऑफ निखिल। निखिल लगातार मारिगुडी के लिए वापसी करते हुए और पूरी तरह मैच को लाते हुए। नाउ आई कैन श्योरली से दैट Marigudi friends are on the driving seat with that boundary. 19 runs on the board, 19 रन बन चुके हैं। काफी बड़ा रन खड़ा कर चुका है यहाँ पर मारिगुडी फ्रेंड्स के बल्लेबाज। सलामी जोड़ी आए थे निखिल और रवि पट्टायर के साथ और इस सलामी जोड़ी ने So I request both the captains of Jigarmine Mudibidri and Bedra fans, both the captains to come on the commentary box for the toss ceremony. और एक बेहतरीन गेंद मगर लेग स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा। प्रेशर दिलाते हुए गेंदबाज के ऊपर प्रेशर आता हुआ रियाज एनएम मैंगलोर काफी निराशमंद जरूर होंगे, काफी महंगे साबित होते हुए यहाँ पर रियाज लगातार अपनी ओवर में रन बटोरते हुए। इसी के साथ बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर, 1 रन आसानी के साथ लेते हुए 2 रन की मांग नहीं, 1 रन से संतोष होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कुल मिलाकर ऑन दी बोर्ड 21 ऑन दी बोर्ड। नाउ रिक्वायर्ड रिमेनिंग 30 deliveries, 19 runs to win this match. 30 deliveries, 19 runs to required to win this match. मेरे हिसाब से आगे बढ़ते हुए मारिगुडी फ्रेंड्स अब तक
30 गेंदों पर 19 रन एक आसान लक्ष्य होता है, मगर क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी कहीं भी पलट सकती है। तो इसी के साथ आतिफ एनएम का आगमन होता हुआ गेंदबाजी का रूप संभालते हुए, और एक बेस्ट चैंपियन फ्रॉम एनएम मैंगलोर आतिफ गेंदबाजी का रूप संभालते हुए। दो बड़े ओवर, दो अच्छी ओवर यहां से अगर निकल जाएगी एनएम मैंगलोर को, डॉटेड डिलीवरी या मेडन ओवर की तरह निकल जाएगी, तो मैच को वापसी कर सकते हैं। अगर इसी तरह की बल्लेबाजी करेंगे, एक एक दो दो रन के साथ अगर आगे बढ़ेंगे, तो मैच मारिगुडी फ्रेंड्स आसानी के साथ जीत सकते। तो मैच को पकड़ में लाना होगा, एनएम मैंगलोर को जीतना हो तो। रन्स जरूर बने थे पहले इनिंग्स पर, मगर बीच में जो मिडिल ओवर्स जो रहते हैं उसमें थोड़ी मुश्किलात सामना करना पड़ा यहां पर एनएम के बल्लेबाजों को। बेहतरीन गेंदबाजी थी सुकुमार की, जो बड़ी विकेट दो सुकुमार के ओवर में निकली थी, उसके बाद मैच की कॉम्प्लिकेशन पूरी तरह बदल गई थी एनएम मैंगलोर को। तो इसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी आतिफ को। आतिफ तैयार गेंदबाजी का रूप संभालते हुए। और एक बेहतरीन गेंद, डॉटेड डिलीवरी, 29 डिलीवरीज, 19 रन्स रिक्वायर्ड टू विन दिस मैच। रोचक मैच बनता हुआ दोनों बड़ी टीमों के बीच। डॉटेड डिलीवरी विल बी बैक टू द एनएम मैंगलोर ओवर हियर। लगातार दो डॉटेड डिलीवरी, इसी तरह की गेंदबाजी चाहिए यहां पर एनएम मैंगलोर को। अगर इसी तरह की गेंदबाजी करेंगे तो मैच वापसी कर सकते, बाउंस बैक कर सकते हैं यहां पर एनएम के गेंदबाज। और आतिफ अनुभव रखते हैं गेंदबाजी का। दो गेंद लगातार डॉटेड डिलीवरी हो चुकी है यहां पर। अब बचे हुए 4 गेंदों पर कितना रन जोड़ पाएंगे देखना पड़ेगा। सलामी बल्लेबाज निखिल अब तक इस पारी को संभाला है, रन्स बनाया यहाँ पर मारिगुडी के लिए। हीरो ऑफ दिस इनिंग्स कह सकते हैं निखिल के 2 चौके ने पूरी तरह विश्वास दिलाया यहाँ पर मारिगुडी फ्रेंड्स को। फील्डिंग की सजावट करते हुए यहाँ पर तैयार आतिफ अपनी तीसरी गेंद लेकर मार्केट एंड से अंपायर सतीश को पार करते हुए। और एक बेहतरीन गेंद, मगर वाइड का इशारा एम्पायर द्वारा। इसी के साथ 1 मोर एडिंग एक्स्ट्रास इन द टोटल। लगातार एक्स्ट्रास के रूप पर रन्स बटोरते हुए, रन्स यहां पर खोल के दे रहे हैं यहां पर विपक्षी टीम अपने सामने वाली टीम को। तो इसी के साथ और एक वाइड, 2 लगातार डॉटेड के बाद 2 लगातार वाइड डिलीवरीज। गलती कर बैठे यहां पर आतिफ, यहां पर आतिफ लगातार गलती कर बैठे आप। यहां पर 2 गेंदों के बाद 2 वाइड डालना एक गलत हो सकता है यहां से। तो इसी के साथ अच्छी स्ट्रोक, फील्डर तैनात लॉन्ग ऑफ रीजन पर 1 रन आसानी के साथ लेते हुए, इस 1 रन के साथ 1 मोर एडिंग इन टोटल विद दैट 1 रन स्कोर कुल मिलाकर ऑन दी बोर्ड 24 ऑन दी बोर्ड। 24 ऑन दी बोर्ड। आतिफ अपनी चौथी गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे रवि पड्डयूर। हल्की गति सी गेंद थी, पुश करना चाहते थे, मगर गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ी बहुत घूमी, समझ नहीं पाए। तो इसी के साथ डॉटेड डिलीवरी। आखिरी 2 गेंद शेष, लास्ट 2 मोर डिलीवरीज टू गो फ्रॉम हियर। 5वीं गेंद लेकर तैयार आतिफ मार्केट एंड से सतीश को पार करते हुए, गेंदबाजी ग्रुप संभालते हुए। और एक बेहतरीन गेंद सीधा जाके स्टंप्स पे टकराई, गिल्लियां उड़ी वहां पर। इसी के साथ रवि का विकेट निर्गमन हो चुका है। द बिग पार्टनरशिप गोइंग बैक टू द पिविलियन। ब्रेक थ्रू दिलाते हुए यहां पर आतिफ एनएम मैंगलोर। इसी के साथ मारिगुडी की बड़ी विकेट यहां पर निकल चुकी है। बिग फिश इनटू द नेट ओवर हियर विद दैट बिग विकेट। उनका स्थान निभाना यहां पर। और एक लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन, जर्सी नंबर 77 राजेश उबार का आगमन होता हुआ। राजेश अनुभव भी रखते हैं यहाँ पर। सभी खिलाड़ी उस रवि का सराहना करते हुए अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड किए थे निखिल के साथ। मैच को पूरी तरह ला चुके थे यहाँ पर, मगर अंतिम क्षण तक मैच को खत्म नहीं कर पाए रवि। गेंद सीधा जाके स्टंप्स पे टकराई, गिल्लियां उड़ी वहां पर। तो इसी के साथ रवि का विकेट निर्गमन हो चुका है और नए बल्लेबाज राजेश का आगमन होता हुआ। निखिल अभी भी नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद, राजेश स्ट्राइकर एंड पर मौजूद। अनुभवी सलामी बल्लेबाज राजेश का आगमन होता हुआ। आतिफ अपनी छठी गेंद लेकर तैयार। 6th डिलीवरी ऑन द प्रोग्रेस ऑफ द 3rd ओवर।
और एक बेहतरीन गेंद हल्के से रक्षात्मक तरीके से खेलते हुए एक रन आसानी के साथ ले चुके हैं। 2 रन की मांग यहाँ पर राजेश की, मगर एक रन से संतोष होना पड़ेगा। इस एक रन के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कुल मिलाकर ऑन दी बोर्ड 25 on the board after completion of 18 deliveries. Now required 24 deliveries. Runs required 15 runs to win this match. 24 deliveries, 15 runs to win this match. हमारे जो कमेंट्री बॉक्स के लेफ्ट हैंड साइड पर TNT LED बोर्ड मौजूद है, बिग स्क्रीन, उसमें बता रहे हैं कि बेद्रा मीडिया का लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। 24 डिलीवरीज, 15 रन्स रिक्वायर्ड। एक तरफ एनएम मैंगलोर और दूसरी तरफ मारीगुडी फ्रेंड्स के बीच रोचक मैच चलता हुआ इस स्वराज मैदान पर। द टाइम इज 1:37, but still 1200 are watching the live telecast in the YouTube channel of Bedra Media. This is the power of Underarm Cricket and Bedra Media too. क्योंकि Bedra Media जब live telecast आती है तो लगातार जो क्रिकेट फैंस होते हैं लगातार इस लाइव टेलीकास्ट को जरूर देखते हैं। तो 1.2 के व्यूअर्स मैच को देखते हुए अब इस एनएम मैंगलोर और मारीगुडी के बीच अगर मैच की ओर चलते हैं तो पूरी तरह मारीगुडी अपनी जीत की ओर थोड़ी थोड़ी कदम रखते हुए आगे बढ़ चुके हैं। क्या एनएम मैंगलोर लगातार विकेट्स और डॉटेड डिलीवरी के साथ मैच को वापसी कर सकते, देखना पड़ेगा। और एक बेहतरीन गेंद, 1 रन एडिंग टोटल। अयाज गेंदबाजी का रूप संभालते हुए न्यू बॉलर इनटू द कैंपेन। यहां पर देखिए राजेश की चुरक, यहां पर देखिए थोड़े से फंबल हुए थे, गेंद को लेने में थोड़ी सी यहां पर फंबलिंग हुए थे जरूर, उसी का फायदा उठाया यहां पर राजेश ने। इस 2 रन के साथ स्कोर कुल मिलाकर ऑन दी बोर्ड 27 ऑन दी बोर्ड। What an man he is running between the wickets। देखिए उस बंदे का 27 ऑन दी बोर्ड। लास्ट 5 more deliveries to go from this over। 5 गेंदों पर कितना रन जोड़ पाएंगे देखना पड़ेगा। माफ कीजिएगा, सिर्फ 1 रन, 1 रन विल बी एडिंग इन टोटल। 2 रन की सरकार नहीं है यहां पर, तो स्कोर कुल मिलाकर 26 ऑन दी बोर्ड। आखिरी 5 गेंद शेष। अयाज गेंदबाजी का रूप संभालते हुए निखिल की एक बेहतरीन बल्लेबाजी, वहां पर एक टिप्पा खाने के बाद फील्डर के हाथों पे आई। 1 रन से संतोष होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ 1 more adding to the total with that 1 runs, 27। देखिए वहां पर एलईडी स्क्रीन पर जो पहली पिछली गेंद थी, जो राजेश ने 2 रन लेने की पूरी कोशिश की थी, रिप्ले दिखा रहे हैं यहां पर बेद्रा मीडिया के एलईडी बोर्ड पर। इसी के साथ एक्स्ट्रास के रूप पर और 1 रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड पर। तीसरी गेंद लेकर तैयार है अयाज, रक्षात्मक तरह से खेलते हुए रनिंग बिटवीन द विकेट्स। देखिए यहाँ पर जहां पर 1 रन लेना था वहां पर 2 रन लीजिए, ये राजेश की खूबी है। राजेश इसी तरह की बल्लेबाजी करते हैं, इसी तरह की रनिंग बिटवीन द विकेट्स करते हैं, चकमा देते हैं यहाँ पर हर गेंदबाज और क्षेत्ररक्षण को प्रेशर दिलाते हैं। तो इस 2 रन के साथ स्कोर कुल मिलाकर ऑन दी बोर्ड 30 ऑन दी बोर्ड। मूव टू 30 ऑन दी बोर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 डिलीवरीज। 4th टाइम अयाज तैयार गेंदबाजी का रूप संभालते हुए
बल्ले का अंदर किनारा लगता हुआ गेंद सीधा सीमा रेखे पार करके 4 रन के लिए पूरी तरह मैच को वापसी करते हुए यहाँ पर मारिगुडी फ्रेंड्स राजेश के उस बल्ले से चौका आता हुआ। इस चौके के साथ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ती हुई यहाँ पर मारिगुडी फ्रेंड्स की स्कोर को मिलाकर ऑन दी बोर्ड 34 ऑन दी बोर्ड। नाउ मारिगुडी फ्रेंड्स आर फार फ्रॉम 6 रन्स टू विन दिस मैच। 6 रन की दरकार अभी भी बाकी है मारिगुडी फ्रेंड्स को जीतने के लिए और वाइड का इशारा लगातार मैच को पूरी तरह खो चुके हैं यहाँ पर एनएम मैंगलोर के गेंदबाज और क्षेत्र रक्षण लगातार वाइड्स और एक्स्ट्रास के साथ रन्स देते हुए और एक बेहतरीन गेंद सीधा डॉटेड डिलीवरी विकेट कीपर के दस्तानों पर आई। इसी के साथ डॉटेड डिलीवरी और एक रन्स आयरिंग टोटल विद दैट 1 रन स्कोर कुल मिलाकर ऑन दी बोर्ड 36 ऑन दी बोर्ड। 4 रन्स टू विन दिस मैच। पूरी तरह एक तरफा होती हुई मैच यहाँ पर 4 रन की जरूरत मैच को जीतने के लिए। ಬೆದರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಜಿಗರ್ ಮೈಂಡ್ ಮೂಡಿಬಿದ್ರೆ ಈ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಸೆಣಸಾಟ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ತಂಡಗಳ ಕಪ್ತಾನರು ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮಿಕೆ आतिफ गेंदबाजी ग्रुप संभालते हुए कोई रन नहीं, डॉटेड डिलीवरी 4 रन की जरूरत जीत के लिए। आतिफ गेंदबाजी ग्रुप संभालते हुए यस अंपायर थर्ड अंपायर का कैच के लिए मेरे हिसाब से यस कैच के लिए यहां पर अपील थी और सतीश ने थर्ड एम्पायर का इशारा देते हुए यहां पर और हमारे साथ थर्ड एम्पायर मॉनिटर पर इरफान बेद्रा मीडिया मौजूद। यस आउट का इशारा देते हुए यहां पर इसी के साथ राजेश का विकेट निर्गमन होता हुआ। थर्ड एम्पायर का इशारा दिया था एम्पायर ने तो बल्ले का अंदरूनी किनारा लगकर सीधा थर्ड मैन रीजन पर वहां पर फील्डर तैनात है। इसी के साथ विकेट नंबर 2 गोइंग बैक टू द पिविलियन राजेश के रूप पर अभी भी मैच पूरी तरह मारिगुडी की ओर बढ़ता हुआ। रन्स बने हैं स्कोर बोर्ड पर। वंडरफुल इनिंग्स बाय विद दैट मैन राजेश उबारा एक बेहतरीन इनिंग्स खेलकर अपनी टीम को जीत के और बढ़ाते हुए। इसी के साथ आतिफ पहली गेंद पर एक बड़ी ब्रेक थ्रू दिलाते हुए दूसरी गेंद लेकर तैयार। न्यू बैट्समैन इनटू द क्रीज जर्सी नंबर 04 अशोक का आगमन होता हुआ। अशोक का आगमन होता हुआ स्ट्राइकर एंड पर। और एक बेहतरीन गेंद सीधा कीपर की दस्तानों पर आई। डॉटेड डिलीवरी विद दैट डॉटेड डिलीवरी लगातार रन्स रोकने की कोशिश में है आतिफ। तीसरी गेंद लेकर तैयार।
और एक बेहतरीन गेंद थी मगर गेंद हाथ में तो नहीं आई थी, गिल्लियां उड़ी थी जरूर। डॉटेड डिलीवरी लगातार आतिफ हर गेंद पर रोक जमावट करने की कोशिश करते हुए मगर रन्स अभी भी 4 रन की जरूरत मैच को जीतने के लिए। आखिरी 3 गेंद शेष इस ओवर की। लास्ट 3 मोर टू गो फ्रॉम दिस ओवर। चौथी गेंद लेकर तैयार आतिफ टू अशोका। एक रन आसानी के साथ ले चुके हैं। इस एक रन के साथ स्कोर कुल मिलाकर ऑन दी बोर्ड 37 ऑन दी बोर्ड। 3 रन्स टू विन दिस मैच। लास्ट 2 मोर डिलीवरी फ्रॉम दिस ओवर। इनिंग्स की 5वीं ओवर चालती पर आखिरी 2 गेंद शेष। द 5th टाइम आतिफ तैयार गेंदबाजी को संभालते हुए और एक करारा स्ट्रोक आता हुआ बल्ले का अंदरूनी किनारा लगाता जरूर। एक रन आसानी के साथ ले चुके हैं। इस एक रन के साथ 38 ऑन दी बोर्ड। लास्ट 1 मोर डिलीवरी टू गो। 38 ऑन दी बोर्ड। 2 रन्स टू विन दिस मैच फ्रॉम रिमेनिंग 13 डिलीवरीज। डॉटेड डिलीवरी ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कुल मिलाकर ऑन दी बोर्ड 38 ऑन दी बोर्ड। नाउ रिक्वायर्ड 2 रन्स टू विन दिस मैच फ्रॉम 12 डिलीवरीज। एनएम मैंगलोर पूरी तरह निखर चुकी है यहाँ पर। उम्मीदों के ऊपर पानी फेर चुका है यहाँ पर एनएम मैंगलोर के गेंदबाज। क्षेत्र रक्षण की यहाँ पर कोई काम नहीं आई। मारिगुडी के बल्लेबाज निखिल, राजेश, रवि जैसे अनुभवी बल्लेबाज मैच को पूरी तरह मारिगुडी को जीत के और लेते चलते हुए यहाँ पर अशोका नॉन स्ट्राइकर मौजूद। निखिल अभी भी स्ट्राइकर एंड पर मौजूद। अनुभवी बल्लेबाज ओपनिंग साझेदारी आई थे यहाँ पर। अभी भी वॉच एंड डिलीवरी दैट फ्रॉम मुजीब के और से क्या गेंद थी देखिए यहाँ पर। बेद्रा मीडिया में तो आज ये गेंद सारे यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगी। वॉच एंड डिलीवरी दैट वाज सीधा गिल्लियां उड़े यहाँ पर। मगर क्या पारी थी वहां पर निखिल द्वारा, सारा ना देने वाली पारी। ओपनिंग बल्लेबाज आए थे निखिल अपनी टीम को पूरी तरह जीत के और बदलते हुए। इसी के साथ और एक न्यू बैट्समैन अल्ताफ का आगमन होता हुआ। अल्ताफ और एक अनुभवी ऑलराउंडर अपनी टीम के लिए मारिगुडी में काफी वक्त इन्होंने भी बिताई है। बेस्ट कैंपियन फ्रॉम मारिगुडी फ्रेंड्स अल्ताफ का आगमन होता हुआ। मुजीब मैंगलोर एक्सप्रेस जो कहते हैं मुजीब को उसी तरह की गेंदबाजी करते हुए दूसरी गेंद लेकर तैयार। मुजीब टू अल्ताफ और एक बेहतरीन गेंद मगर गेंद हाथ पे नहीं आया। विकेट कीपर की गिल्लियां उड़ाई थी जरूर मगर गेंद लपक नहीं पाए वहां पर इरशाद जो क्षेत्र रक्षण थे। तो इसी के साथ डॉटेड डिलीवरी। लास्ट 4 more deliveries to go. Totally 10 more deliveries to go from this innings. Last 4 more deliveries to go. Third time. धीरे धीरे एनएम मैंगलोर के फैंस अपने छोटी छोटी कदम रखते हुए वापस अपने घर लौटते हुए हमें नज़ारा देखने को मिल रहा है। इस ग्राउंड पर काफ़ी दर्शक थे एनएम मैंगलोर के। सभी दर्शक निराशमंद होकर वापसी लौटते हुए मगर निराशमंद नहीं हुए क्योंकि एनएम मैंगलोर अभी भी अंडरआर्म क्रिकेट के एक दिग्गज टीमों से माने जाते हैं। आज मारिगुडी ने बेहतरीन प्रदर्शन कर मैच को जीता यहाँ पर। वेल प्लेड मारिगुडी फ्रेंड्स। इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर एनएम मैंगलोर फॉर द फ्यूचर गेम्स ओवर हियर। और हम धन्यवाद कहना चाहेंगे एनएम मैंगलोर को। मैंगलोर से मुड़बिद्री आकर इतनी अच्छी बड़ी टूर्नामेंट पर इतना अच्छा प्रदर्शन देकर
यहाँ के लोग यहाँ कर स्पेक्टेटर्स करो एक बेहतरीन गेम दिखाने के लिए। तो इसी के साथ अगला मैच बेद्रा फ्रेंड्स और जिगर माइन मुडबिद्री के बीच रोचक मैच। एक तरफ कृष्णापुरा के अनुभवी बल्लेबाज अनुभवी क्रिकेट प्लेयर्स होंगे तो दूसरी साइड कासरगोड जैसे बड़े जिगर माइंड और बेद्रा के बीच मैन ऑफ द मैच पुरस्कार के लिए रिक्वेस्ट निखिल ऑफ मारिगुडी फ्रेंड्स टू कम ऑन द मेन स्टेज for the man of the match पुरस्कार and I request the legend of Underarm cricketer Mr. Riyaz Gori to give a handover man of the match award to Nikhil Marigudi friends.